Good morning, dear students. After completing examples 9.1, 9.2 and 9.3, today we will solve example 9.4. So the question is like this. A force of 5 Newton gives a mass m1. We are not given the value of that object 1 who is having mass m1. So there is one object of mass m1. The force is 5 Newton. Now that particular object is accelerated by 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, इस पे अगर हम 5 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, so due to that applied force, its velocity will increase, it will undergo acceleration. So the acceleration in that case is found to be 10 meter per second square. Now there is another object having mass m2. If you apply the same force, that is 5 Newton on the object having mass m2, तो शायद ये ऑब्जेक्ट उससे थोड़ा ज्यादा हल्का है, तो उस वजह से उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा आता है. फर्स्ट ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कितना आता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सेकंड ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है, उसमें भी मैं फोर्स सेम लगाता हूं, दैट इज m2, ओके, सॉरी 5 न्यूटन, बट इन m2 द एक्सेलरेशन इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अभी हमको क्या फाइंड करना है? व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव if both masses were tied together, यानी जो m1 वाला ऑब्जेक्ट है, m2 वाला ऑब्जेक्ट है, दोनों को अगर टाई करके अगर मैं 5 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो what will be the acceleration produced? So once again understand here properly, there are two objects, one object is having mass m1, another object is having mass m2. दोनों ऑब्जेक्ट पे इक्वल फोर्स लगता है. कितना फोर्स लगता है? 5 न्यूटन. So the object with mass m1 is accelerated by 10 meter per second square, and the object with mass m2 is accelerated at 20 meter per second square. Using this much data, I want to find that what will be the value of acceleration if the same force, yani the force of 5 Newton is applied when both the objects, that is having mass m1 and m2 are tied together. तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी of mass m1 and mass m2. ठीक है? So that's why after getting value of m1 and m2 we will combine. So we will get the combined weight of m1 and m2, and in that case we can find the acceleration. Okay? So now first of all, for object with mass m1, ठीक है, यहां पे हमको फोर्स दिया हुआ है of 5 न्यूटन. वी नो द फॉर्मूला फॉर फोर्स. ओके, नाउ हियर द फोर्स अप्लाइड इज सेम, यानी फोर्स को F1 F2 लिखने की जरूरत नहीं है. फोर्स इज इक्वल इन बोथ द केसेस. सो द फोर्स अप्लाइड F विल बी इक्वल टू m1 इनटू a1. ओके, फोर्स कितना अप्लाई होता है? 5 न्यूटन. m1 the value we don't know, but the acceleration in case 1 is 10. So therefore value of m1 will be equal to 5 upon 10. So that is 0.5 kg. यानी कि using the formula force F is equal to the product of mass and acceleration, I found out the value of m1. Now using the same logic, using the same technique, we'll find out the weight m2. Okay, so now for object with mass m2, यहाँ पे भी फोर्स तो F 5 न्यूटन ही लग रहा है, तो F में कोई चेंज नहीं लाएंगे, बट हियर वी विल हैव m2 into a2. सो फोर्स इज 5 न्यूटन, m2 हमको करना है फाइंड. सेकंड ऑब्जेक्ट है, जो m2 वाला हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका एक्सेलरेशन कितना दिया है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो दैट मींस वैल्यू ऑफ a2 इज 20. सो नाउ therefore value of m2 will be equal to 5 by 20. So this is 1 by 4. So that will be equal to 0.25 kg. Okay, तो आधा सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया. I found out the values of m1 and m2. Now what I need to find? I need to find the acceleration generated when these two objects having mass m1 and m2 are tied together and force of 5 Newton is applied on it. Okay, so now total mass when m1 and m2 are
tied together. That mass m will be equal to 0.50 plus 0.25. So that is 0.75 kg. Okay. So as the total mass is 0.75 kg, we will use the same formula, that is force F is equal to mass into acceleration. यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है? Acceleration. So therefore acceleration A will be equal to force upon mass. Force तो सेम ही है, that is 5 Newton upon total mass when both the objects, that is 0.5 kg वाला m1 और 0.25 kg वाला m2, जब उसको हम टाई करेंगे तो उसका जो टोटल मास होगा that is 0.75. And when you perform this division, you will get 6.666. So when you round it off, acceleration will be 6.67 meter per second square. So once again, यहाँ पे हमने क्या किया है? We have two objects of mass m1 and m2. When a 5 Newton force is applied on it, okay, the first object undergoes acceleration of 10 meter per second square. The second object undergoes acceleration of 20 meter per second square. The question is कि जब ये m1 और m2 दोनों मास को टाई करेंगे तब कितना acceleration आएगा? So the value of acceleration when both the objects, that is object with mass m1 and the object with mass m2, when both of them are tied together, then the acceleration produced will be 6.67 meter per second square when a 5 Newton force is applied on it. So dear friends, after discussing the first law of motion and second law of motion, let us discuss the last, that is the third law of motion. Okay, it's very simple to understand. Its examples are also very easy. So you just need to focus in what you are listening right now. Okay, so first of all, let us understand what is the statement of third law of motion. Okay, the statement of third law of motion goes like this: when one object exerts force on another object, the second object instantaneously means at the same moment, उसी टाइम पे, okay, instantaneously exerts a force back on the first. यानी कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है तो उसी टाइम पे जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इट आल्सो अप्लाइज फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ दीज टू फोर्सेस, यानी कि the force applied by object 1 on object 2 and the force applied by object 2 on object 1, these two forces are equal in magnitude. यानी कि ये जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू सेम होती है but it is always in opposite direction. So once again, what is the statement? When one object exerts force on another object, the second object instantaneously means at the same time exerts a force back on the first. यानी कि जब पहला ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाता है तो उसी टाइम पे जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्या अप्लाई करता है? फोर्स अप्लाई करता है. ठीक है, नाउ दीज टू फोर्सेस, यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट 1 ऑन ऑब्जेक्ट 2 एंड द बैक फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट 2 ऑन ऑब्जेक्ट 1, बोथ दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. यानी दोनों फोर्स की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है बट दैट डायरेक्शन इज opposite, but they are opposite in direction. So that is the basic statement of third law of motion. So now let us try to understand this law of motion with certain examples. If you are watching some sports like cricket, hockey or football, right, sometimes क्या होता है कि जो प्लेयर्स है वो खेलते खेलते एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं. They collide with each other. Okay, so when both the players collide with each other, both the players get some injury. Why? Because player 1 has applied some force on player 2 and player 2 has at the same time applied some force on player 1. So both the players are equal likely to get injured. Okay, now इस एग्जांपल के बाद ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसका एक ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी है. ठीक है, सो दिस थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन बी डिफाइंड एज
the given over here, and it can be also defined in short: to every action there is equal and opposite reaction. So this is also the statement of third law of motion, but the third law of motion can also be alternatively written as that to every action there is equal and opposite reaction. ओके, तो ये बात दोनों सेम ही है, उसके वर्ड थोड़े डिफरेंट है. सो दिस कैन बी आल्सो रिटन एज स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन. जो उसका जो मेन पार्ट है, ठीक है, द मेन हार्ट ऑफ द थियरी रिमेन्स द सेम. ओके, सो अगेन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स. स्प्रिंग बैलेंस. डियर फ्रेंड्स, अगर आपका कोई रिलेटिव फॉरेन जा रहा है या आप कभी फॉरेन ट्रिप पे गए हो, तो एक वेइंग बैलेंस होता है जिसके पे आप बैग जो होती है ट्रैवलिंग की, उसको लगा के ऐसे पुल करते हो, ठीक है. तो बैग के प्रेशर की वजह से जो स्केल है वो एक रीडिंग दिखाता है, उसको हम स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बैलेंस. सो इफ द वेट ऑफ द बैग इज 20 kg, then the needle of that spring balance will point towards the 20. If it is 15, it will point towards 15. Okay, so what you need to do, you need to take two spring balance. क्यों? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे इक्वल फोर्स लगाता है कि नहीं, हमको चेक करना है, ठीक है. सो आई हैव टेकन टू स्प्रिंग बैलेंस. अभी हम क्या करेंगे? आफ्टर टेकिंग दोस टू स्प्रिंग बैलेंस, हम क्या करेंगे? स्प्रिंग बैलेंस को वॉल के साथ अटैच करेंगे और दूसरे स्प्रिंग बैलेंस को पहले के साथ अटैच करेंगे. तो एक एंड है वो वॉल के साथ अटैच है. फिर मैं क्या करूंगा? आई विल पुल द सेकंड स्प्रिंग बैलेंस विथ माय हैंड. तो जो फर्स्ट वाला है वो वॉल के साथ अटैच है, दूसरा है वो फर्स्ट के साथ अटैच है, और मैं जो सेकंड स्प्रिंग बैलेंस है उसको इस तरह से पुल करूंगा. अगर मैं इस तरह से पुल करूंगा, इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा स्प्रिंग बैलेंस है, इट इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द फर्स्ट वन. ओके, एज ए रिजल्ट क्या होगा? इस टाइप जो हमारा सेकंड स्प्रिंग बैलेंस है उस पे एक रीडिंग आएगा 5 kg 10 kg, दैट इज इक्वल टू द फोर्स दैट आई हैव अप्लाइड. ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा तो उसकी वैल्यू थोड़ी होगी, मैं जैसे फोर्स इंक्रीज करूंगा तो उसमें वैल्यू चेंज होगी. बट द इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग टू सी ओवर हियर इज कि जो रीडिंग जो आपको स्प्रिंग बैलेंस 2 में दिखेगा, वही सेम रीडिंग आपको स्प्रिंग बैलेंस 1 में दिखेगा. यानी कि मैंने पुल करने के बाद देखा कि द स्प्रिंग बैलेंस 2 इज शोइंग द मार्किंग ऑफ 10. तो एट दैट टाइम स्प्रिंग बैलेंस 1 will also be show marking of 10. Now if I pull it harder, तो जो सेकंड स्प्रिंग बैलेंस था उसमें 10 के वजह हो गया 15. ओके, तो जो फर्स्ट वाला है उसमें भी रीडिंग क्या हो जाएगा? 15. तो उसका मतलब क्या है कि जब स्प्रिंग बैलेंस 2 ने स्प्रिंग बैलेंस 1 पे फोर्स लगाया, उसी वक्त स्प्रिंग बैलेंस 1 also applied an equal force on spring balance 2. That's why we got same reading in both the spring balances. दोनों स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग है वो सेम आएगा. क्यों? क्योंकि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. और बाय दिस स्टेटमेंट व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first. And the important thing, these two forces are equal in magnitude but they are opposite in direction. Okay, so now for again better understanding, let us take an example of bullet fired from a gun. तो जब शूटिंग की कंपटीशन हो, ठीक है, तो उसमें अगर आप देख रहे हो कि जब वो एथलीट होता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, वो जब बुलेट को फायर करता है, ठीक है, एट दैट टाइम बुलेट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट एट द सेम टाइम द गन इज पुश्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. अगेन अगर आपने इसको गौर से नहीं देखा तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ओलंपिक्स या वगैरह कोई भी स्पोर्ट देखो तो देखना कि जब वो फायरिंग करते हैं, ठीक है, तो जब बुलेट जैसे ही बाहर की ओर डायरेक्शन करती है, एट द सेम टाइम द गन विल कम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. इसको इसकी रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं. तो गन रिकॉइल क्यों हुई? तो सेम लॉजिक है कि जब जो हमारी गन थी उसने क्या किया, उसने बुलेट पे एक फोर्स एक्सर्ट किया जिसकी वजह से बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हुई. एट द सेम टाइम बुलेट आल्सो एक्सर्टेड इक्वल फोर्स ऑन द गन, लेकिन ये फोर्स तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है ना. तो उसी वजह से
जब बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो द गन एट द सेम टाइम इज पुश्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। नाउ आफ्टर लर्निंग दिस एग्जांपल आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर जो फोर्स की वैल्यू है वो सेम है तो जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से बुलेट आगे गई उस वेलोसिटी से गन तो वापस उतनी स्पीड से नहीं आती, राइट? ऐसा क्यों होता है? सो द अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द मास। तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है वो किस पे डिपेंड होता है? मास। हमने इससे आगे जो एक एग्जांपल किया था, ठीक है, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स थे हैविंग मास m1 एंड मास m2। अब दोनों पे फोर्स इक्वल लगाया था 5 न्यूटन का, ठीक है, बट जो m1 वाला ऑब्जेक्ट था जिसका मास ज्यादा था, याद करो 0.5 kg, ओके, 0.500 kg और 0.5 kg, यानी वो 500 ग्राम का ऑब्जेक्ट था, तो उस पे एक्सेलरेशन आया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जो ऑब्जेक्ट m2 था जिसका मास उससे हाफ था, इट वाज 0.25 kg, तो उसमें वही फोर्स ने एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस किया। फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 था उस पे एक्सेलरेशन हुआ था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन जो सेकंड ऑब्जेक्ट था उस पे एक्सेलरेशन हुआ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? फोर्स तो दोनों पे सेम लगा, लेकिन जैसे जो ऑब्जेक्ट लाइटर होता है उस पे एक्सेलरेशन की इफेक्ट ज्यादा होती है, और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होता है उस पे एक्सेलरेशन की इफेक्ट भी उसी प्रकार से होती है। सो एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द मास। सो ग्रेटर मास लेसर एक्सेलरेशन, लेसर मास ग्रेटर एक्सेलरेशन। सो अगेन when you are firing a bullet from a gun, जब आप गन में से बुलेट फायर करते हो तो जो बुलेट ने गन पे फोर्स लगाया और जो गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया वो दोनों फोर्स इक्वल होता है, वो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, बट द वेलोसिटी, द फॉरवर्ड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एंड द बैकवर्ड वेलोसिटी और द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन are not the same. Why? Because mass of bullet and mass of gun is not the same. Okay, if you compare, then the mass of bullet is very less compared to the mass of the gun. गन का वेट बुलेट से ज्यादा होता है, तो इस वजह से बुलेट पे जितना एक्सेलरेशन आता है उतना एक्सेलरेशन गन पे नहीं आता है, ठीक है। फोर्स तो सेम लगता है, बट ड्यू टू ग्रेटर मास द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन इज लेस सीन इन द गन। एक और भी एग्जांपल हो सकता है सेलर जंपिंग आउट ऑफ अ बोट, ठीक है। अगर आप भी कभी बोटिंग पे गए हो कहीं पे, ठीक है, जब आपका बोटिंग का राउंड खत्म हो जाता है तब आप बोट से जब बाहर आते हो तब आप क्या महसूस करते हो कि जब आप बोट से प्लेटफॉर्म पे जंप करते हो तो आपको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जंप करते हो तो बोट जो होती है वो थोड़ी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है। क्यों? बिकॉज व्हेन यू आर जंपिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज योर एक्शन, okay, so due to that the boat is moved in the backward direction, that is the reaction. So action and reaction are equal and opposite. You are walking on a road is also example of third law of motion. क्यों? क्योंकि जब आप चल रहे हो तो आप रोड पे फोर्स लगाते हो, तो रोड अप्लाइज एन इक्वल फोर्स ऑन योर बॉडी। तो जब आप चलते चलते रोड पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो आपकी बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है, ठीक है। पर जैसे ही आप जोर ज्यादा लगाते हो तो क्या होती है? आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि व्हेन यू अप्लाई मोर फोर्स ऑन द ग्राउंड अप्लाइज इक्वल फोर्स ऑन योर बॉडी व्हिच इज ट्रांसफर्ड इनटू द मोशन ऑफ योर बॉडी। मींस यू स्टार्ट वॉकिंग, ज्यादा फोर्स लगाओ तो आप रन करते हो, तब आप क्या करते हो? जो जमीन होती है, जो ग्राउंड होती है, उस पर ज्यादा फोर्स लगाओ तो आप जितना फास्ट रन करते हो तो आप ध्यान से सोचना कि क्या होता है। व्हेन यू आर रनिंग फास्ट यू आर अप्लाइंग मोर फोर्स ऑन द ग्राउंड। तो जब आप ग्राउंड पे फोर्स लगाते हो, ग्राउंड अप्लाइज इक्वल फोर्स ऑन योर बॉडी। सो यू आर पुशिंग द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जब आप चलते हो तो आप ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हो, तो उसके रिएक्शन की वजह से आपकी बॉडी है दैट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो डियर फ्रेंड्स, आई एम क्वाइट श्योर दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड द concept of third law of motion. Okay, so once again, what is third law of motion? When an object exerts force on another object, the second object instantaneously, means at the same time, exerts a force back on the first one. और ये जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट उसकी डायरेक्शन होती है ऑपोजिट। ऑल्टरनेटिवली we can also describe the third law of motion by this statement, that is, to every action there is equal and opposite reaction.
So dear friends, I have given you numerous examples which are related to third law of motion. So if you find any more examples related to third law of motion, you can write down in the comment box below the video. Thank you.